Welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. Myself, Seema Shantanu Wag from Science Department. Today we are going to study a topic from physics said to be electric current through a conductor. Now, what we understand by this, it means we are going to study about electric current and conductor. Now, try to understand what is conductor. Conductor मतलब क्या होता है? Which allows to flow of electric charge as an electrons to allow to move freely in a device component. Now, with that, we are going to start with an introduction part said to be a valence electrons. Now, here we have an introduction. The valence electrons become a delocalized when a large number of atoms comes together in a metal. What do we understand by this? A delocalized मतलब क्या? The electrons which are in a band but they are moving in a random motion. And what we understand by the random motion? Random motion मतलब क्या? The electrons which are loosely bound to a outermost shell. Outermost shell मतलब जिसमें a force of attraction न्यूक्लियस से लूजली बॉन्डेड होता है. जब लूजली बॉन्डेड होता है तब क्या होता है? वो अपने ऑर्बिट से इजीली बाहर जा सकता है. दिस वी अंडरस्टैंड बाय delocalized. This is a conduction electron of a free electron constituting an electric current when a potential difference is applied across the conductor. Now, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैंने अभी बताया जैसे कि ना जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने न्यूक्लियस से लूजली बॉन्ड होते हैं. बिकॉज वो न्यूक्लियस से जब दूर रहेंगे तो उनका बॉन्ड कैसा रहेगा? दे हैव अ वेरी वीक बॉन्ड एज कंपेयर टू अदर शेल. वी हैव अ 4 टाइप्स ऑफ शेल दैट आर के एल एम एन. जो आउटरमोस्ट शेल रहेगा वो वाले इलेक्ट्रॉन्स दे आर सेड टू बी अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट we will study about an electric current. Now try to understand what is electric current. Electric current मतलब क्या? Electric current means it is a flow of a stream or it is a stream where the flow of a charge or an ion. क्या बोला मैंने? It is a flow of it is a stream in which a flow of electrons and ions. Now जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स की बात तो होगी. बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स जो डिवाइस को रन करने में हेल्प करते हैं. एज वी एवरीवन नो दैट इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी हाईली चार्ज पार्टिकल विच अलाउ टू फ्री ऑफ मूव अ करंट इन एन इजी मैनर. मतलब वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को इजिली मूव करने के लिए हेल्प करता है. Now we will consider an imaginary gas of both negatively and positively charged particles flowing in a random various direction across the plane P in a time interval t. The amount of positive charge flowing in a forward direction be a Q plus and the amount of a negative charge flow through a forward direction of Q minus. Now, as we know as keep in a device or a battery or a cell, we have a 2 type of a charge, that is positive charge and a negative charge. जब भी हम लोग नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं इट मीन्स हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, और जब पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे इट मीन्स वी विल टॉक अबाउट होल्स. नाउ एवरीवन नोज दैट कि इलेक्ट्रॉन इज हाईली चार्ज पार्टिकल्स. जो हाईली चार्ज पार्टिकल है इट विल मूव इन अ रैंडम मोशन. रैंडम मोशन मतलब क्या? It will move in a such a manner. It means जहां पे they will not have a fixed path. जहां पे fixed path नहीं रहेगा it will perform a random motion. Random motion मतलब it will perform in a random form where they will not have a fixed path. This we will talk about. We will see in this. Next you have a flow of charge particle. Just now I said about this, a flow of charge particle. जब हम लोग flow of charge particle की बात करते हैं it means एक मोमेंटम होता है जो चार्ज परफॉर्म करता है. As everyone knows that a electric charge or a electron perform according to a circuit. जो वो सर्किट में परफॉर्म करेगा it will perform according to positive charge जो negative charge. जब इलेक्ट्रॉन्स परफॉर्म करेगा it will perform from a positive to negative. उसको हम लोग डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव. वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स
पुश करेगा चार्ज को टू रन इन अ सर्किट। जब वो पुश करेगा तो सर्किट में रन करने के लिए इट विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इट मतलब क्या? इट विल प्रोवाइड अ पोटेंशियल टू अ चार्ज पार्टिकल टू मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू अ नेगेटिव डायरेक्शन। सो इट इज डिफाइंड एज इट इज अ क्वांटिटी of a proportional to the time t, the ratio q, that is defined as a current I, that we will get a formula I equals to q upon t। मतलब कुछ तो वक्त लगेगा एक सर्किट में रन करने के लिए, पर उसके लिए हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? विद द हेल्प ऑफ टाइम। टाइम भी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? टाइम टेकन टू मूवमेंट ऑफ अ चार्ज इन अ 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा एक सर्किट में, दैट विल बी आइडेंटिफाइड। और आइडेंटिफाई करेंगे बाय दिस। सर ये पार्ट ओमिट होगा। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे एक टाइम में, दैट टाइम इंटरवल हम लोग कंसिडर करेंगे टी। वो टी क्या होता है? एक 1 सेकेंड में कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे वो वाला चार्ज। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी एसआई यूनिट ऑफ करंट। हम लोग एसआई यूनिट ऑफ करंट इज अ एम्पियर, उसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए। दैट इज ऑफ अ चार्ज टाइम टी इज सेट कूलम, उसको डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। एंड टाइम वी विल कंसिडर स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम इज सेकेंड रेस्पेक्टिवली, तो इट इज डिनोटेड बाय एस रेस्पेक्टिवली। Next we will study about the flow of current through a conductor. Now again I have said कि एक प्रॉपर सर्किट होता है जिससे करंट फ्लो होता है। मैंने बताया जैसे कि इट मूव फ्रॉम अ पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। अ करंट कैन बी जनरेटेड बाय अ पॉजिटिवली और अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। मतलब करंट हम लोग पॉजिटिवली चार्ज से भी रन कर सकते हैं, नेगेटिव चार्ज से भी रन कर सकते हैं। दैट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट सेशन बाय अ ट्रांजिस्टर। नाउ a positively charged and a negatively charged particle in an electrolyte, both positive and a negatively charged particle take part in a conduction। conduction मतलब क्या? जैसे कि हम लोग ने पहले पढ़ा, we have a two part, there is insulator and a conductor। insulator मतलब क्या होता है? insulator which allow फ्री चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो करंट को इजीली फ्लो करने के लिए अलाउ करता है होता है कंडक्टर। वही इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर मींस व्हिच डू नॉट अलाउ अ फ्लो ऑफ करंट इन अ प्रॉपर फॉर्म। दैट process is to be electrolyte, that process is to be a electrolyte, that is a both positively and a negatively charged particle take part in conduction। in a metal the free electrons are responsible for conduction। फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल कंडक्शन में क्यों होता है? बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन अ रैंडम मोशन। जब रैंडम मोशन में वो लोग रन करेंगे, द अमाउंट ऑफ करंट विल बी मोर बिकॉज दे डू नॉट हैव अ प्रॉपर पाथ टू अ मूव। जब प्रॉपर पाथ नहीं होगा, मोमेंटम विल बी मोर, मोमेंटम ज्यादा होगा, द चार्ज provided or a charge conducted by a particle will be more as compared to that। This electrons flow and generate a net current under the action of applied electric charge। और applied electric charge से ज्यादा मूवमेंट करेंगे या ज्यादा नेट करंट परफॉर्म इसलिए करते हैं बिकॉज they don't know कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज करना है टू परफॉर्म इन अ करंट इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक circuit। As long as a steady field exists, the electrons continue to flow in a form of a steady current। Such steady electric field are generated by a cell or a battery। Now अगर सेल और बैटरी में अगर आप देखोगे उसमें दो चार्जेस है, जैसे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जब भी हम लोग को यूज करना होता है, वी कनेक्ट पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, correct? Now why it is important? Because a flow of current in a steady form we have to apply in a such a manner कि वो steady current में flow करे। जब अगर हम steady current apply नहीं करेंगे, the circuit or device won't be run in a proper form। That is the reason we have to apply in according to a series only। Next we have a drift speed। Now what we understand by the drift speed?
Now it is an imagine a copper rod with a no flowing through it. Now मतलब एक copper rod consider करेंगे जिसमें current flow नहीं कर रहा. Now a schematic of a conductor with a free electron in a random motion. Random motion मतलब क्या? The current, the electron जो कोई भी मोमेंटम में परफॉर्म कर रहा है, जो एक लाइन में या स्टडी फॉर्म में मूव नहीं कर रहा है. देयर विल नो नेट मोशन और रैंडम मोशन. दिस इलेक्ट्रॉन्स इन एनी डायरेक्शन, वो क्या करेंगे? वो कोई भी डायरेक्शन में मूव करेंगे बिकॉज उनके पास एक प्रॉपर पाथ नहीं है. द इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट हैव अ प्रॉपर पाथ दे ऑलवेज परफॉर्म अ रैंडम मोशन. If electric field is applied along a length of a copper rod, a current is set up randomly. Now, if we have a consider one of the rod और मैंने करंट उसमें अलाउ किया, तो जब करंट मैंने अलाउ किया तो एक प्रॉपर पाथ परफॉर्म करेगा. जब प्रॉपर पाथ परफॉर्म करेगा तो एक प्रॉपर लेंथ यूज होगा. लेंथ यूज होगा मतलब क्या? एक पर्टिकुलर एरिया में वो मूव करेंगे. वो पर्टिकुलर एरिया को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? एज अ लेंथ. This electron still move in a random but tends to a drift in a particular direction. This direction is opposite to that of applied electric field. Now, जब drift कब होगा? जब random मतलब free electron उसके बीच में आएंगे. Free electrons क्या करेंगे? जो करंट मूव कर रहा है एक प्रॉपर लेंथ में, वो उसको क्या करेगा? ऑब्स्ट्रक्ट करेगा. मतलब उसको वो वैसे जाने के लिए रोकेगा. जब वो रोकेगा तो वहां पे फ्लक्चुएशन होगा. उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड. नेक्स्ट वी विल स्टडी अ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ रैंडम मोशन इनसाइड द करंट. मैंने जैसे कि बताया फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? रैंडम मोशन करता है. जब भी वो रैंडम मोशन करेगा तो चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन विल बी मोर एज कंपेयर्ड टू स्टेडी करंट और स्टेडी इलेक्ट्रॉन. How the current through a conductor related to a drift speed of electron. Drift speed कैसे related होता है इलेक्ट्रॉन्स में? ये हम लोग यहाँ पे पढ़े. A part of a conducting wire with its free electron having a drift speed that we will drift speed को हम लोग कैसे कंसिडर करेंगे? We will denote it as a VD in the direction opposite to an electric field E. हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करेंगे as a E. हम लोग जैसे कि ये डायग्राम में आप देख सकते हो, वहां पे ड्रिफ्ट स्पीड है जहां पे इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे हैं. कोई भी इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है. उसको प्रॉपर मोशन में ऑब्जर्व करने के लिए कौन रोक रहा है? ड्रिफ्ट स्पीड. वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.